Good afternoon, children. In our last video, we have completed the 4th chapter, that is Animal Kingdom. Today, we will start with the new chapter, that is 5th chapter, which is Morphology of Flowering Plants. Children, morphology means the external observable feature. Okay, study of external observable feature, that is called morphology. Now, in this chapter, the different topics which are discussed is about the stem, root, leaves, flowers. Children, but all the initial topics, that is about root, stem and leaves, this year it is being deleted from the syllabus, right? So we will be directly starting with the flower. All these things, root and its types, the region of the roots, modification of the roots, it is not there in the syllabus. About stem is also not there in the syllabus. Okay, so we will be directly starting from, ठीक है, ये leaves का portion भी omit कर दिया है इस बार board ने. तो we will be starting directly from the topic, the flower and inflorescence. So shall we start? Children, what is a flower? A flower is a modified shoot. ठीक है ना, shoot का modification है. अब कैसे modification होता है? In modification, the shoot apical meristem, it changes to the floral meristem. Shoot का जो apical meristem है, my dear children, about apical meristem you have already studied in 9th standard. Apical meristem are the meristematic tissues which are present at the tip of root and shoot. Okay, here we are talking of shoot apical meristem, means the apical meristem, or you can say that the meristematic tissues which are present at the tip of the shoot are the shoot apical meristem. So this shoot apical meristem, they change to the floral meristem. Okay, that is the modification that is observed in the shoot, and that leads to the formation of a flower. Okay, now when the flower is produced, the internodes, they do not elongate and the excess gets condensed. ठीक है, अब अगर स्टेम को देखोगे तो ऐसा होगा, उसमें बीच बीच में लाइनिंग्स होते हैं. दिस लाइनिंग्स आर कॉल्ड द नोड्स. ठीक है ना, ये नोड्स है, लाइनिंग्स जो है वो, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. ठीक है, तो इंटरनोड्स ये इलोंगेट, मीन्स उसका इलोंगेशन, उसका लेंथ इंक्रीज नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्सिस कैसा होगा, इट विल गेट कंडेंस एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर. ओके, द एपेक्स प्रोड्यूस वेरियस फ्लोरल अपेंडेजेस. जो एपेक्स है, टिप है, वो फ्लोरल अपेंडेजेस मीन्स फ्लावर के पार्ट्स प्रोड्यूस करेगा ऑन द लेटरल साइड at successive nodes. ये nodal region पे क्या होगा, instead of leaf there will be formation of the floral appendages. Okay, and when a shoot tip transforms into a flower, it is solitary. जब shoot का tip flower में convert होगा तो वो single ही होगा, it will be solitary, means it will be single. Okay, then moving to the next slide. Now this is about inflorescence. Inflorescence का मतलब क्या है, arrangement of the flowers, arrangement of clusters of flowers. कहाँ पर, तो floral axis पर, that is called inflorescence. ठीक है ना, ये जो है, ये flowers का जो arrangement है floral axis पे, उसे हम क्या कहेंगे, inflorescence. And based on whether the apex gets converted into a flower or it continues to grow, there are two different types of inflorescence, and that are racemose and cymose. ठीक है ना, ये टिप जो है शूट का, वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है या फिर वो कंटिन्यू करता है ग्रोथ करने में. According to that, there are two types of inflorescence, racemose and cymose.
अब रेसिमोज में क्या है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ओके, एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, देखो यहाँ पर मेन एक्सिस ग्रो होना करता रहेगा और लेटरल साइड पे फ्लावर्स ग्रो होंगे. फ्लावर्स गो लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन. एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या, नीचे ओल्डर फ्लावर्स होंगे, ऊपर की तरफ न्यू फ्लावर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन. ओके, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन रेसिमोज. अब साइमोज में क्या है, इन साइमोज द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर. ये देखो मेन एक्सिस क्या हुआ, फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, ओके, एंड हेंस देयर विल बी लिमिटेड ग्रोथ and the flowers are born in a basipetal order. बेसिपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, नीचे की तरफ न्यू फ्लावर्स होंगे और ऊपर की तरफ कैसे होंगे, ओल्डर फ्लावर्स होंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड बेसिपेटल ऑर्डर विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ एक्रोपेटल सक्सेशन. राइट, नाउ फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फ्लावर इज द characteristic feature of angiosperms, or you can say angiosperms are the flowering plants, right? So why flower is very important, because it is the reproductive unit. वो reproduction में help करता है, इसलिए flower क्या है, it is important unit and it is meant for sexual reproduction. With the help of flower, sexual reproduction takes place, and a flower has a stalk which is called pedicel. यहाँ पर देखो ये जो स्टॉक है, डंडी जो होता है फ्लावर का, जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिसिल. और पेडिसिल का जो स्वोलन एंड है, टिप पर जो स्वोलन पार्ट है ये वाला, उसे क्या कहेंगे, रिसेप्टेकल कहेंगे, या फिर उसे हम कहेंगे थैलामस. राइट, एंड द रिड्यूस्ड लीफ विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल इज कॉल्ड द ब्रेक्ट. यहाँ पर देखो ये पेडिसिल है, उसके टिप पर जो रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्ट. तो जो फ्लावर्स में ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्रेक्टिएट फ्लावर्स, एंड दोज फ्लावर्स विच डू नॉट हैव ब्रेक्ट आर कॉल्ड द इब्रेक्टिएट फ्लावर्स. ठीक है ना, अगर हमारे पास है, अगर फ्लावर के पास ब्रेक्ट है तो वैसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, ब्रेक्टिएट फ्लावर, और अगर ब्रेक्ट नहीं है देन इब्रेक्टिएट फ्लावर. और ब्रेक्ट क्या है, ब्रेक्ट इज द रिड्यूस्ड लीफ विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल. ओके, ओके, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द होल्स. A typical flower has 4 different kinds of holes which are arranged on the thalamus. थैलामस पे 4 डिफरेंट टाइप के होल्स होते हैं फ्लावर में. ओके, इफ यू टॉक ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, राइट, एंड दैट 4 डिफरेंट होल्स आर नथिंग बट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, whereas gynoecium is the female reproductive part, about which you have already studied in 10th class. ठीक है, अब ये reproductive parts है तो obviously they help in reproduction. Okay, so they are reproductive organs and they help in reproduction, whereas calyx and corolla are the accessory organs. Why? Because calyx and corolla, they do not take part in reproduction, but yes, they are very much necessary. Why? Because they take the reproductive organs, that is androecium and gynoecium. ठीक है ना, तो androecium and gynoecium, they are the necessary parts. Okay, necessary है क्योंकि वो reproduction में help करते हैं, जबकि calyx और corolla है accessory parts. क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में तो पार्ट नहीं लेते, बट वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड द एक्सेसरी ऑर्गन्स. ओके,
See in this flower, in this diagram you can see that the flower has all the 4 types of whorls, right? It has the calyx, ये जो है leafy part that is calyx, ये colorful part है corolla है, right? It has androecium, ये दिख रहा है, this is androecium, और center में gynoecium. So this is a typical flower which has all the 4 holes, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Moving to the next slide. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct. ठीक है, हम calyx और corolla को differentiate नहीं कर पाते lily flower में, तो that type of flower is called perianth. ठीक है, जब हम calyx और corolla को distinct नहीं कर पाते, then it is called perianth. Okay. And when a flower has both the reproductive organs, that is it has androecium and gynoecium, then it is called bisexual flower. Bi का मतलब क्या है? 2. ठीक है, तो जब दोनों ही reproductive organs है, androecium and gynoecium, then it is called the bisexual flower. Whereas when a flower is having either only androecium or only gynoecium, then such flowers are called unisexual flowers. uni का मतलब है 1, single. ठीक है, तो सिर्फ जब या तो फिर gynoecium है या तो फिर androecium है, तो ऐसे flowers को क्या कहेंगे? unisexual flower. पर जब दोनों ही है, androecium भी है और gynoecium भी है, तो bisexual flowers कहेंगे. Okay, see here the petals, that is calyx and corolla, are not differentiated, so it is perianth. This is bisexual flower जहाँ पर दोनों ही है reproductive organs, androecium भी है और gynoecium भी है. Now we will study about types of flowers. Children, based on the symmetry, there are 3 different types of flowers. First is the actinomorphic flower, which shows radial symmetry. Radial symmetry last chapter में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है मैंने, फिर भी यहाँ पर भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. ओके. Zygomorphic flower, which shows bilateral symmetry. ठीक है ना, bilateral symmetry भी हम लोग पढ़ चुके हैं, but still we will revise. ओके. एंड asymmetric means irregular. ठीक, अब ये दोनों का तो देख लो यहाँ पर, दिस इज 1 प्लेन, दिस इज 2nd प्लेन, दिस इज 3rd प्लेन, जो सेंटर में से पास होता है. अगर कोई भी प्लेन जो सेंटर में से पास होता है और फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. वाई? बिकॉज इट शोज रेडियल सिमेट्री, है ना. रेडियल सिमेट्री में ऐसा ही होता है, कोई भी प्लेन से कट करो जो सेंटर से पास होता हो और 2 इक्वल हाफ्स हमें मिले, तो ऐसा सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री. वेयरएज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में बाइलेटरल सिमेट्री है. दैट मीन्स जब वर्टिकल प्लेन से हम फ्लावर को कट करेंगे जो सेंटर से पास होता हो, तो हमें राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और कोई प्लेन से हमें राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे. सो सच फ्लावर्स आर कॉल्ड ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर. और एसिमेट्रिक फ्लावर में कोई भी प्लेन से काटो हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, दैट आर कॉल्ड एसिमेट्रिक और इरेग्युलर फ्लावर्स. सो लेट अस सी इट इन डिटेल. ठीक है ना. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है ना. ये सेंटर से कोई भी प्लेन है, फ्लावर को जब डिवाइड करेंगे हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे. वैसे फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स. वेरी गुड. देन एग्जाम्पल्स आर मस्टर्ड, धतूरा, चिली. These are the examples of the actinomorphic flower. Now moving to zygomorphic flower, which shows bilateral symmetry.
यहाँ पर देखो ये प्लेन से हम कट करेंगे तो ही हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे। अगर ये प्लेन से कट करते हैं तो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। यहाँ से कट करें तो नहीं मिल रहे। इफ़ वी कट दिस फ्लावर वी विल गेट 2 इक्वल हाफ्स। यहाँ से कट करेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये प्लेन से कट करेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जब वर्टिकल प्लेन से हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे और हमें 2 सिमिलर हाफ्स मिलेंगे, ओके, then it is called zygomorphic flower which shows bilateral symmetry. Example pea, gulmohar, cassia, etc. And then moving to the last type of flower on the basis of symmetry, it is asymmetric flower. यहाँ पर मैंने क्या बताया, कोई भी प्लेन से अगर फ्लावर को डिवाइड करो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक फ्लावर और इट इज इरेगुलर फ्लावर। एग्जाम्पल कैना, यहाँ देखो, यहाँ से कट करूँ तो इक्वल हाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ से नो, यहाँ से नहीं, तो कोई भी प्लेन से मैं डिवाइड करूँ मुझे इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे। सो इट इज asymmetric flower. Now flowers are of 3 different types on the basis of the flowers are of many types on the basis of the number of floral appendages. Example trimeris, tetrameris, pentameris flowers. ठीक है ना। With the help of its name only you can write the definition. ठीक है। ट्राई का मतलब क्या, 3। तो जब फ्लावर के पास जो फ्लोरल अपेंडेजेस है, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3, 6, 9, 12, 15, जब ये मल्टीपल्स 3 के मल्टीपल्स में अगर प्रेजेंट है, देन सच फ्लावर्स आर कॉल्ड ट्राइमेरस फ्लावर्स। ओके। टेट्रामेरस, टेट्रा का मीनिंग क्या है, 4। तो जब 4 के मल्टीपल में फ्लोरल अपेंडेजेस है, देन सच फ्लावर्स आर कॉल्ड टेट्रामेरस फ्लावर्स। एंड पेंटा का मतलब क्या है, 5। तो फ्लोरल अपेंडेजेस जब 5 के मल्टीपल्स में है तो हम क्या कहेंगे, पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है ना। तो अब ये डायग्राम देखो, ये पिक्चर्स देखो, ये पिक्चर्स में क्या है, ये जो पेटल्स है या फिर ये एंड्रोशियम है वो 3 है। ठीक है ना। तो दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ 3। हियर 1 2 3 4 5 6 है, विच इज अगेन 3 2 6, मल्टीपल ऑफ 3। ओके। सो दिस इज ट्राइमेरस फ्लावर। इफ यू टॉक ऑफ दिस फ्लावर, यहाँ पर 4 पेटल्स है, यहाँ पर भी 4 पेटल्स है, 4 एंड्रोशियम है। ठीक है। तो इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज टेट्रामेरस फ्लावर, राइट। पेंटामेरस में यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 पेटल्स है, वैसे ही 5 एंड्रोशियम है, सो इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 5, सो इट इज पेंटामेरस फ्लावर। क्लियर। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ calyx, corolla and androecium with respect to the ovary, the flowers are of 3 different types. ठीक है। और वो कौन से है, हाइपोजीनस फ्लावर, पेरीजीनस फ्लावर एंड एपिजीनस फ्लावर। ठीक है। कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम का पोजीशन कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, हाइपोजीनस, पेरीजीनस एंड एपिजीनस। तो देखो यहाँ पर डायग्राम देख कर ही याद रहे, अगर डायग्राम दिमाग में रखोगे तो यू कैन ईजिली राइट अबाउट इट। यहाँ पर देखो ओवरी के नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम। ठीक है। तो ओवरी ऊपर है और बाकी के फ्लोरल पार्ट्स कहाँ है, नीचे से निकल रहे हैं, सो इट इज हाइपोजीनस, राइट। इफ द floral parts are developed from the rim of the hypothalamus, rim of the thalamus, thalamus के rim से निकल रहे हैं और यहाँ पर ओवरी ना ही completely नीचे है ना ही completely ऊपर है, that type of flower is called perigynous flower. And in this epigenous
the floral parts are developing above the ovary. ओवरी के ऊपर से डेवलप हो रहा है, ओवरी नीचे है और कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम ऊपर से डेवलप हो रहे हैं, देन दैट इज एपिजीनस फ्लावर. लेट अस सी अबाउट इट इन डिटेल. हाइपोजीनस फ्लावर में क्या है, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, है ना, ये गाइनोशियम पूरा है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये जो है पूरा ऊपर है, हाईएस्ट पोजीशन है उसका, और बाकी के जो सारे पार्ट्स है उसके नीचे सिचुएटेड है, राइट. सो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड हाइपोजीनस फ्लावर्स. हियर द ओवरी इज सुपीरियर. ओवरी कैसी है, ऊपर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर, राइट. एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. नेक्स्ट, पेरिजीनस फ्लावर. In perigenous flower, the gynoecium is situated in the center and other parts of the flowers are located on the rim of the thalamus almost at the same level. यहाँ देखो ये ओवरी सेंटर में है और बाकी के जो पार्ट्स है, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, वो थैलामस के रिम से डेवलप हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट इट इज एट द सेम पोजिशन ऑफ द ओवरी, राइट. सो ओवरी इज हाफ इंफीरियर हियर, कंप्लीटली नीचे भी नहीं है, कंप्लीटली ऊपर भी नहीं है, ठीक है. सो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड पेरिजीनस फ्लावर्स. एग्जाम्पल प्लम, रोज, पिच, राइट. एंड द थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर इज द एपिजीनस फ्लावर, where the margin of the thalamus grows upward, it encloses the ovary completely and then the margin of the thalamus fuses with each other. ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो थैलामस का मार्जिन है वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, फिर फ्यूज हो जाएगा, उसकी वजह से ओवरी पूरा कैसा हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा. सच टाइप ऑफ फ्लावर्स वेयर ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स, दैट इज द कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, it develops above the ovary, it is called the epigenous flower. Here the ovary is inferior, नीचे है इसलिए उसको inferior कहेंगे. ओके, एग्जाम्पल guava, cucumber, ray florets of sunflower, etc. Right? So children, about parts of a flower, calyx, corolla, androecium and gynoecium, we will study in our next video. I hope today's topic was very interesting and you have learned it. Thank you.